all, let me tell you that dental treatment is totally safe during the pregnancy, especially during the second trimester. Second trimester is the meaning that is during the 4th to that of 6th month, the dental treatment are totally safe. But you need to avoid the dental treatment during the first trimester as well as your last month of your pregnancy. Okay, because in the case of first month of pregnancy there is a high chances of morning sickness. That's why we try to avoid it, and the fetal abnormality cases are high. So that's why we try to avoid it during the first month, first trimester of pregnancy. So that doesn't mean that ki aap first trimester and in the last month of pregnancy you cannot visit your dentist. Yeah, you can visit your dentist for a dental checkup, but the treatment protocols need to be avoided during that specific period of time. So what are the treatment plans that you can do? All the treatment plans, that whether you require the tooth removal, that is the extraction, either scaling, the cleaning of teeth, or the root canal treatment, you can do all of these procedures during your second trimester, that is from the 4th month to your 6th month. Okay, that is completely safe. Even you can go for your x-rays. If you want the tooth x-ray, you can go. But what are the specific precautions that a dentist do when you are pregnant? There are certain shielding techniques that will protect your baby and will not harm him. तो क्या होता है, जब आप एक्सरे के लिए जाते हो, there are certain thyroid collars or lead shielding there are lead shielding dresses or aprons that you can wear. So जो भी x-rays जो भी rays emit होती है, that will not transmit beyond. Okay, that will not harm your baby. So these are the protections that a dentist do for the pregnant woman, so as the baby or the fetus inside is not getting harmed from the harmful rays. So that's how you can do your normal procedures. It's completely safe. And most important during the pregnancy is to maintain your gum health. Gum health बहुत ज़्यादा important है. If your gums are not safe, अगर आपके gums, अगर आप brushing अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप cleaning अपने mouth की अच्छे से नहीं कर रहे हो, if you are only eating and avoiding your oral health, then it will completely affect your newborn. कैसे affect करता है? There is something called as the condition that is called gingivitis, that is the inflammation of gingiva. Okay, there is a term called pyogenic granuloma. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे गम्स होते हैं उसके ऊपर में आई विल पेस्ट अ पिक्चर एंड विल शो यू व्हाट इज पायोजेनिक ग्रानुलोमा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस. सो बेसिकली क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस केसेस में जो प्रेगनेंसी ट्यूमर भी बोलते हैं हम इसको गम्स के ऊपर, इट इज़ नॉर्मल. ठीक है, जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर हो जाएगी तो ये रिजॉल्व हो जाएगा. बट इन केस योर ओरल हाइजीन इज पुअर, दैट विल टेंड टू lead to periodontitis, periodontal problems in your fetus or the newborn child. So basically क्या होता है, इसमें क्या बन जाता है, एक आपकी भाषा में अगर मैं बताऊँ, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, तो क्या होता है, हमारे जिंजाइवा के ऊपर एक बॉयल अल्सर टाइप हो जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग ऑफ जिंजाइवा. ठीक है, पायोजेनिक ग्रानुलोमा, जिसमें जो गम्स है दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू ब्लीड. ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा. तो पेशेंट क्या करते हैं, अपने पास जो ब्रशिंग है दे ट्राई टू अवॉइड इट. तो ये कोई इसका आंसर ही नहीं है कि आप जो ब्लीडिंग है हो रही है उसके कारण आपने क्या करा, अपनी ब्रशिंग को अवॉइड कर दिया. दैट्स नॉट अ करेक्ट वे टू मैनेज इट. गो टू योर डेंटिस्ट, आस्क देम, क्योंकि प्रॉपर ओरल हाइजीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ये आप चीज़ जिसको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी, दैट विल लीड टू अ गुड ओरल केयर इन योर फीटस. ओके, और द न्यूबॉर्न चाइल्ड. सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के लिए ओरल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी बाकी ओवरऑल वेलबींग है. ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, दैट विल लीड टू द पेरिडोंटाइटिस इन योर चाइल्ड एंड फर्दर इट कैन लीड टू द प्री इक्लैम्पसिया स्टेज और द लो बर्थ वेट. जो आपका जो बेबी है वो प्री टर्म पैदा हो सकता है और उसका जो वेट होगा दैट विल बी नॉर्मल एज कम्पेयर टू द अदर चाइल्ड, जो भी नॉर्मल रेंज ग्रुप है उससे कम होगा. सो दैट्स ऑल अप टू यू whether you want your baby to be healthy or not. आज से ही शुरुआत कीजिए इस चीज़ के लिए और अपने दिमाग में ये मत बिठाइए कि प्रेगनेंसी में हम डेंटल केयर नहीं करवा सकते. या डेफिनेटली यू कैन डू, यू कैन गो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इन द लास्ट मंथ, ट्राई टू अवॉइड इट, बट यू कैन टेक, आप सलाह ले सकते हैं अपने डेंटिस्ट से. यू कैन, अगर आपको कोई फिलिंग्स वगैरह रेस्टोरेशन वगैरह करवानी है, या यू कैन डेफिनेटली गो एंड आस्क देम. चेकअप, रेगुलर डेंटल चेकअप इज मैंडेटरी. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. बाकी
अपने फीटस, अपने न्यूबॉर्न की हेल्थ आपके ही हाथों में है। अगर आप अपने ओरल हाइजीन की हेल्थ इम्प्रूव करेंगे, अच्छी रखेंगे, तो जो बेबी है वो भी हेल्दी बॉर्न होगा। सो यही था आज की वीडियो के लिए। बाकी लाइक करें, शेयर करें, अपनी जो भी न्यू मॉम्स है दैट आर एक्सपेक्टिंग टू बी अ न्यू मदर, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करें। और बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे फॉलो चीज़ करी थी, और बाकियों को भी आप इससे इस वीडियो के थ्रू गाइड कर सकते हैं। येस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नॉर्मल फीमेल्स में भी होते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट दीज हार्मोन्स टेंड्स टू स्पाइक अ लॉट। इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, एंड दीज 2 हार्मोन्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग द जिंजिवाइटिस, जिसके कारण हमारे गम्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ केयर टू आवर ओरल हाइजीन, इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद ही रखनी पड़ेगी। तो हम अपने जिंजिवाइटिस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वी कैन डू प्रॉपर ब्रशिंग मेथड। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस, यू कैन डू चेक। प्रेगनेंसी में ही नहीं करना है वैसे ब्रशिंग, वी हैव टू डू दैट ब्रशिंग इन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ओके, आप उधर जाके देखिए, दिन में 2 बारी ब्रश कीजिए आप लोग, ठीक है। यूज़ अ प्रॉपर फ्लॉस। फ्लॉसिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इंटरडेंटल बिटवीन द 2 टीथ जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह हमारे जो फंसे होंगे वो भी उससे ईजिली निकल जाएंगे, ठीक है। सो यही है कि आप अपनी डेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ अस आर कंसर्न वेदर वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स और नॉट। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हो, दे विल टेंड टू गिव यू सर्टन एंटीबायोटिक्स, बट रिमेंबर दीज एंटीबायोटिक्स आर सेफ, दीज आर रिकमेंडेड बाय FDA, there are certain pregnancy safe antibiotics that you can take during a pregnancy. They are completely safe, that will not harm your newborn or the fetus. So remember, it's completely safe to take them. And yeah, don't forget to tag a mom to be, and please share these tips with all your family and your friends and your beloved ones. Bye bye.